Hello student, how are you? I am going to start chemical behavior of haloarine as chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene or fluorobenzene. Chemical properties of haloarenes. Haloarenes, one is a example, chlorobenzene, Cl belong to 17 group, 2, 4, 6 and 1 electron with sharing of aromatic nucleus carbon. Name of it is chlorobenzene. In chlorobenzene, 3 pi electrons means 3 pi bond. Total is a 6 electrons. Not is a localized between carbon. They are delocalized. It means the electrons moving from first carbon to second carbon. During the delocalization of the electrons, second carbon carry negative charge and first carbon carries positive charge. The second carbon carries a negative charge, it means electron rich, and first carbon is a electron deficiency because it carries a positive charge. Cl is a carry 3 lone pair of electrons. 1, 2. The Cl donate the 1 electrons, then it carries a positive charge. Who is accept these electrons? Carbon of aromatic nucleus. Then positive charge of this carbon is a neutralized, and 1 electrons of unpaired Cl and 1 electrons of carbon, making new pi bond between carbon and chlorine. And second is a electron rich location. Second is called ortho position. First and second. Whenever the electrophiles come, it definitely attack number 2 or ortho position. And during the delocalization of electrons, again the pi electrons cloud moving from third carbon to fourth carbon. Then fourth carbon is carry negative charge. Third carbon carries positive charge. And second is already carries a 1 electron pair and negative charge. Aromatic nucleus carbon bonded with Cl with double bond. Second carbon negative, third carbon positive, and fourth is again negative. Second carbon donate the 1 electrons, then 1 electrons and negative charge is neutralized. Who is accept these electrons? Third number carbon accept these electrons. Second carbon is carry 1 electrons unpair. Third carbon is carry also 1 unpair electrons. The 1 electrons unpair, making new pi bond between second and third carbon. Then fourth location are para position, electron rich. यहाँ पर कौन सा था बेटा? Ortho position. Whenever electrophiles come, then definitely attack number fourth or para position. अभी एक इलेक्ट्रॉन्स पर और बचा है ना पाई इलेक्ट्रॉन सी वाला, then it is also delocalized. When this electrons is delocalized, the 6 number carry 1 negative charge and electrons pair. Fifth is a positive, fourth is already negative, and halogen means chlorine and aromatic nucleus bonded to double bond. Fourth number carbon
donate of 1 electrons, then negative charge of it is neutralized. Who is accept? Fifth number carbon. Then fifth number carbon positive charge is also neutralized. क्यों न्यूट्रलाइज हो गया? बिकॉज इट एक्सेप्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ नंबर. किसने दिया बेटा इलेक्ट्रॉन्स? फोर्थ नंबर ने दिया. तो अभी ऊपर नीचे बना था, हमने इसको ऊपर बना दिया. 1 electrons carry 4 number carbon unpair and fifth number. They are capable to making new bond between 4 and fifth number carbon. And 6 is also called as a ortho position. First structures of chlorobenzene. Second structures of chlorobenzene. Third structures of chlorobenzene. And fourth resonance structures of chlorobenzene. Delocalization of electrons from first carbon to second carbon. Again, delocalization of electrons from first carbon to second carbon. Is called positive resonance effect, or sometimes called positive mesomeric effect. And during the delocalization of electrons, carbon and halogen bonded by the double bond, and second number carbon is carry 1 electron pair and negative charge. Second number position is called electron rich and name of it is ortho. And next is a para position where is electron rich and carries a negative charge. Whenever electrophiles come to near of chlorobenzene, तो कभी इलेक्ट्रोफाइल्स यदि आया तो वो कहां जाएगा? डेफिनेटली वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस है. कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है? या तो नंबर 2 और नंबर 4. या तो नंबर 2 और नंबर कौन सा बेटा? 4 नंबर. इज इलेक्ट्रॉन रिच. Whenever electrophiles come, it definitely attack number 2 or number 4. And 4 number is called para position. Then halo is, इसका मीन से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को वो निर्देशित कर रहा है कौन? हेलोजन. हेलोजन मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. कि इलेक्ट्रोफाइल्स कहां अटैक और अटैच होगा? कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पर. या कहां अटैक करेगा? पैरा पर. जहां अटैक करेगा वहीं अटैच होगा. इसका मीन्स क्या है? हेलो इज हेलोजन ऑर्थो आर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. Then whenever the electrophiles come, it definitely attack number 2 or number 4. 2 and 4 is called ortho and para position. Then halogen or chlorine ortho para directing group. किस वजह से हो रहा है? पॉजिटिव रेजोनेंस वजह से, है ना, या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. व्हाट, थोड़ा और चलते हैं. इन क्लोरोबेंजीन, one is a positive resonance effect. Chlorine is a general tendency, it attract sharing electron pair towards side. तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से कहां की ओर जाएंगे? डेफिनेटली कहां से जाएंगे? कार्बन टू हेलोजन, ड्यू टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. And delocalization of electrons is called positive resonance effect. तो एक हेलोजन एरोमेटिक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स कहां की ओर जाने का प्रयास करेंगे? एरोमेटिक न्यूक्लियस से कार्बन की ओर. वर्ड इन पॉजिटिव रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है विद इन न्यूक्लियस. फर्स्ट कार्बन से कहां की ओर जा रहे हैं? वो सेकंड कार्बन की ओर. इसका मीन से दोनों इफेक्ट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं.
कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट more powerful or more strong compared to positive resonance effect. Then generally benzene is a deactivated. कैसी रहती है? डीएक्टिवेटेड रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 246 पर नहीं रहती है, इंक्रीज नहीं रहती है। कहां पर? 246 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से, मेसोबैरिक इफेक्ट से ओरिएंटेशन इस पैटर्न में आता है कि ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन रिच लोकेशन जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आके अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा, ओरिएंटेशन है, वो मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट कंट्रोल करता है। और बेंजीन डीएक्टिवेट क्यों है? बिकॉज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो किस प्रकार की रिएक्शंस होगी? इसका मीन्स है द हैलोजन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज नंबर 2 नंबर 4 is a electron rich position in chlorobenzene or haloarine. अब कुछ हम एक रिएक्शंस को देखते हैं, जो रिएक्शंस कैसे होंगे बेटा, देखते हैं जरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मीन्स क्या है? जब भी कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल्स होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा, तो वो किस लोकेशन पे जाके अटैक करेगा, जरा देखते हैं। ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल्स से आता है, मान लेते हैं ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ये कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आया। तो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, तो ऑर्थो डेरिवेटेड का फॉर्मेशन होगा, या वो कहां अटैक करेगा बेटा? पैरा पोजीशन पर। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, पैरा डेरिवेटेड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन किसका मेजर अमाउंट होगा? कौन सा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है ना, देन पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ज्यादा अमाउंट का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन कैसा निकलेगा? ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन कैसा निकलेगा? ऐसे इलेक्ट्रोफाइल से निकलेगा। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। नंबर 1, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मीन्स क्या है? वन इज द एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था किस प्रकार से रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट से प्रोग्रेस करती है। रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Al Cl3 or FeCl3. The role of the AlCl3, one is it help in a breaking of CCl bond heterolytic pattern and carrier of halogen. 2 is a role. तो सेकंड Cl कहां लगेगा? ऑर्थो पे लगेगा। सेकंड इज, और कौन सा अमाउंट बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा। द नेम ऑफ इट इज ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। सेकंड कौन सा होगा बेटा? पैरा क्लोरो बेंजीन। कौन सा? लेकिन पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। ठीक है ना, ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? हेलोजिनेशन और क्लोरीनेशन। नंबर 2,
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे होता है? फ्रॉम कंसंट्रेट HNO3। रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। क्लोरीन C6H5 क्लोरोबेंजीन with नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसंट्रेट। किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? नाइट्रोनियम आयंस। कौन रिएक्शंस को प्रोग्रेस कराएगा? नाइट्रोनियम आयंस। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा बेटा? NO2। और कहां लगेगा NO2? दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनता है? पैरा प्रोडक्ट बनता है। किसका अमाउंट ज्यादा होगा? ऑर्थो का। इसका नाम क्या रखें हम? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। दूसरा कौन सा होगा बेटा? पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका? नाइट्रेशन। और देखते हैं नंबर थर्ड, सल्फोनेशन। किससे होगा? फ्रॉम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। Cl प्लस H2SO4। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? सल्फोनियम आयंस बनेगा। ClSO3H सल्फोनियम आयंस न्यूक्लियोफाइल बनता है बेटा यहां पर, है ना। एंड सेकंड इज द पैरा प्रोडक्ट। नेम ऑफ इट इज, क्या नाम होगा? सल्फोनियम। सल्फो ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे ना, तो ये ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेटा ये कौन सा बनेगा? पैरा हुआ ना, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए और रिएक्शन देखते हैं। एक बहुत अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 हो गया ना। फोर्थ, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस two part. One is a alkylism. Cl reaction with CH3 Cl methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. The product is ortho position. Second is a para position CH3 Cl. क्या नाम होगा बेटा इसका? ऑर्थो क्लोरोटोलिन। इसका नाम क्या होगा? पैरा क्लोरोटोलिन। किस ग्रुप का एडिशन हुआ? मींस किस कार्बोनियम, मिथाइल कार्बोनियम ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। लेकिन ऐड कौन सा ग्रुप और अटैच कौन सा हो रहा है? CH3। CH3 क्या? मिथाइल एल्काइल का मेंबर है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा है? एल्काइल एल्कलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3Cl।
नंबर 2, सेकंड पार्ट, एसिलेशन। किससे रिएक्शंस करते हैं? देखिए एसिलेशन में एसिटिल क्लोराइड CH3COCl रिएक्शंस कैसे प्रोग्रेस होगी देखते हैं। Cl reaction with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. The bond is breaking in a heterolytic pattern. कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है बेटा? ऑर्थो और पैरा। देखते हैं क्या बनेगा। ऑर्थो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा फ्रॉम COCH3। बेंजीन पर CH3 CO ग्रुप लगा हुआ है, एसिल ग्रुप। इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनॉन। और क्या लगा यहाँ पर? Cl लगा था ना। द नेम ऑफ दिस ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? और कहां अटैच होता है? एट पैरा पोजीशन। इसका क्या नाम होगा? पैरा पोजीशन है ना बेटा, तो क्या नाम रख दें इसका? पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन पर जब COCH3 लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। तो फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए ना। तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट बना दे रहे हैं। एसिटोफिनॉन C6H5COCH3 ये कीटो ग्रुप है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर इसको जाएगा ना अकॉर्डिंग 11th क्लास, प्रीवियस क्लास में था ना। तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ऑर्थो। ये कौन सी है? पैरा पोजीशन। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड जब ऑर्थो आएगा तो ऑर्थो कहलाएगा, या फोर्थ आएगा तो पैरा कहलाएगा। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, सेकंड मींस ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये 1 है तो 1 2 3 4 उल्टा काउंट होगा ना, 1 2 3 4। 4 कौन सी है? पैरा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन में आसानी से नहीं होती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द delocalization of electrons in chlorobenzene by the resonance effect, the halogen or chlorine bonded with aromatic nucleus carbon through किसके द्वारा? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा हो गया? देखने में आपको लगता है कि हेलोजन और कार्बन के बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड है, बट ड्यूरिंग द delocalization the halogen and carbon aromatic nucleus bonded by the double bond, then required is a more energy for breaking of this bond। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। देन जनरली क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होती है, बट रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, बट स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए दोनों आपका एक क्लोरोबेंजीन है, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल्स सॉल्यूशन है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कितना? 623 केल्विन। देखिए कोई गैस नहीं है बट प्रेशर इज। अब आप समझ रहे होंगे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से कितनी कंडीशंस चेंज हो गई है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। कितना हो गया? 623 केल्विन। प्रेशर कितना? 1 atm होता है। कितना हो गया? 300 atm हो गया। किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। देन drastic conditions apply, the halogen
displace are substituted by the OH group and formation of phenol. यानी आपका हेलोजन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट फॉर्म में, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट फॉर्म में हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हुआ है. Then the name of this reaction is called nucleophilic substitution reaction because OH डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस किया, किसको करता है, Cl को. Then is called nucleophilic substitution reactions because Cl as a nucleophile substituted by the OH group. Then is called nucleophilic substitution reactions. Second is nucleophilic substitution reactions का second example क्या है, why amine group, amine group से substitute करते हैं. देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस एमिन ग्रुप के लिए अमोनिया को लेते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. द रेंज ऑफ टेम्परेचर 475 केल्विन एंड प्रेशर देखिए कितना हो गया, 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर. देन हेलोजन मींस क्लोरीन substituted by the amine nucleophile. Then this reaction is called nucleophilic substitution reactions. And why product here is H2O plus Cu2Cl2 cuprous chloride and halogen Cl2 substituted by the एमीन. इसको बोलते हैं ग्रुप कन्वर्जन, हेलोजन टू एमीन ग्रुप. अगर कभी ऐसा आ जाए कि हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है किसके द्वारा, एमीन ग्रुप से, तो रिएक्शंस किससे कराएंगे हम, अमोनिया प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड. एक सिंपल टाइप में लिख दे रहे हैं हम Cl. इसको रिएक्शंस को जब कन्वर्जन करते हैं तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, NH3 Cu2O 475 Kelvin 60 atm and halogen or chlorine substituted by the amine group, group conversion. Next है why cyano group. cyano group cyanide द्वारा क्लोरोबेंजीन Cl reaction with CuCN in the presence of pyridine. The range of temperature 475 Kelvin. Halogen means chlorine substituted by the Cl nucleophile and formation of cyanobenzene. और वाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CuCl हो जाएगा. इट मींस हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय द साइनाइड ग्रुप और साइनो ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट. यहां पर क्या बना, साइनोबेंजीन बना. अब ये साइनोबेंजीन क्या है, इट बिहेव एज ए टूल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं जरा देखते हैं. तो क्लोरोबेंजीन को अपने किस में चेंज कर लिया, साइनोबेंजीन में. इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, साइनाइड ग्रुप टू एमीन ग्रुप CH2NH2 फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन. देखिए क्या हुआ, आपके पास क्या था, क्लोरोबेंजीन था. क्लोरोबेंजीन को आपने किस में कन्वर्ट किया, साइनोबेंजीन में. साइनोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी एमीन में. ये क्या बना, बेंजाइल एमीन. क्या नाम है इसका बेटा, बेंजाइल एमीन. नीचे लिख दे, चलिए लिख दे रहे. द नेम ऑफ दिस बेंजाइल एमीन. थोड़ा आगे चलते हैं. अगर हमारे पास साइनोबेंजीन है,
It react with concentrated HCl, acidic medium, concentrated. Amine group 2, cyano group 2, amide group. देखिए क्या हो गया, पहले हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, फिर मैं साइनोबेंजीन बनाया और साइनोबेंजीन को किसमें चेंज कर दिया, बेंजामाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजामाइड. नेक्स्ट इज, अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, साइनोबेंजीन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड. ये कहा रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने, जब हम क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथिल को KCN से रिएक्ट कराते हैं और साइनाइड कंपाउंड को फॉर्म किया था, तब भी रिएक्शन देखी थी, रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप. तो जब कंसंट्रेट से कराते तो अमाइड बनता है, और डाइल्यूट से कराते बेटा तो याद करो क्या बनेगा, कौन सा ग्रुप लग जाएगा, साइनो ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कौन सा ग्रुप बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो देखो क्लोरोबेंजीन को आपने साइनोबेंजीन में चेंज किया, क्लोरो हेलोजन को साइनो ग्रुप में चेंज किया और साइनो ग्रुप से क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लिया. इसको बोलते हैं ग्रुप कन्वर्जन. थोड़ा भी आपको एक सिंपल रिएक्शन में लिख के बताएंगे आपको कैसे रिएक्शंस हुई, देखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे ना आपको. आपके पास क्या था, यहां लिखते हैं, चलिए क्या था आपके पास, क्लोरोबेंजीन था. क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराई आपने, CuCN से, है ना. किसकी प्रेजेंसी में, क्लोरीन की प्रेजेंसी में. क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ वो, साइनोबेंजीन में. ठीक है ना. साइनोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, बेंजाइल एमीन में. और किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, अमाइड ग्रुप में. और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड में. तो देखो C6H5 था, अब C6 से कितना हो गया बेटा, C6 प्लस 1, एक और आ गया ना कार्बन, C7. इसका मीन्स है कि इसके द्वारा हम कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, साइनाइड ग्रुप लगा के. साइनाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन में. और किसमें चेंज कर सकते हैं, अमाइड ग्रुप में. और किसमें चेंज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मीन्स बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना. आगे चलते रिएक्शन विथ मेटल. मेटल में क्या है, जैसे आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, चलिए कोई एग्जांपल लेते, बहुत अच्छा एग्जांपल बनने वाला है. यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनिक टूल बनेगा जिससे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेटिक किया गया, क्लोरोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन. क्या बनेगा, देखिए ये फिनाइल हो गया, ये Mg हो गया, और ये क्या लग गया, Cl. तो क्या नाम होगा इसका बेटा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इसको बोलचाल में क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने. तो इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो जरा एरोमेटिक को Ar लिख देते हैं, एरिल हो गया, Mg हो गया और X हो गया. एरिल मैग्नीशियम हैलाइड. Cl है तो क्लोराइड होगा, Vr है तो ब्रोमाइड होगा, I है तो आयोडाइड होगा. चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी, यहां पर लिख दे रहे, बहुत सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, ब्रोमेंजीन प्लस नॉन एक्वियस रिएजेंट चाहिए. चलिए किसको लेते हैं, अब ईथर को लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और ईथर. क्या बन जाएगा भाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. चलिए यह नाम लिख दे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब आगे चलते हैं. तो मैग्नीशियम के बाद किसको लिया आपने, सोडियम को लिया. नेम क्या लिखा आपने, वुट्टेज-फिटिक रिएक्शंस. क्या है, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस, कुछ भी नहीं है. किसको ले रहे थे हम लोग, चलिए देखते हैं.
क्लोरोबेंजीन को लिया और किससे रिएक्शंस करा दी, सोडियम के साथ। लेकिन और क्या है साथ में, जरा देखते हैं, और साथ में क्या लिखते हैं जरा देखते हैं इसमें। देखिए किसको लिखा हमने, एल्काइल हैलाइड। तो एक तो आपका एरिल हैलाइड है, दूसरा कौन सा है, एल्काइल हैलाइड है। मींस एक क्लोरोबेंजीन है और दूसरा क्लोरोमेथेन है। किसके साथ रिएक्शंस हो रही है, सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंसी में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए ना, सोडियम तो वाटर में होगा तो कैसा है, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, वाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है बेटा, 2NaCl। और क्या होगा, CH3 methyl group attached with aromatic nucleus. The name of this methyl benzene or toluene. This is called Wurtz-Fittig reactions. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, because aryl halide and alkyl halide mixture react with sodium in the presence of ether and form is a toluene. Second is a Fittig reactions. देखते हैं Fittig reactions में क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम, सेकंड क्या है, इज आल्सो क्लोरोबेंजीन। इट मींस ओनली वन टाइप रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट है, एरिल हैलाइड, ओनली एरिल। इसमें एल्काइल हैलाइड नहीं है, रिएक्ट विद सोडियम। क्या निकल जाएगा बेटा यहां से, क्या निकलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सब्बास, क्या निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, बाई प्रोडक्ट हो गया। यहां लिख देना 2NaCl, और साथ में क्या बनेगा, 1 फिनाइल सिंगल बॉन्ड एंड सेकंड फिनाइल रिंग, तो इसको नाम क्या दे दें, डाई फिनाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्या, उल्मान रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं है उल्मान रिएक्शन। आपने क्लोरोबेंजीन को ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन को ले सकते हैं, लेकिन आपको किससे चाहिए, डाइफिनाइल आयोडोबेंजीन से। क्या करेंगे, कॉपर के साथ रिएक्ट करा देंगे, किसको, आयोडोबेंजीन को। क्या होगा, Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, वाई प्रोडक्ट हो गया। और क्या होगा, अरे भाई दो फिनाइल रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगे थ्रू द सिंगल बॉन्ड, इज कॉल्ड डाइफिनाइल। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइफिनाइल का। उल्मर रिएक्शंस मींस iodobenzene react with copper powder and form is a cuprous iodide and diphenyl. It is called Ullmann reactions. Iodobenzene react with copper and form is a cuprous iodide and diphenyl. This reactions is called Ullmann reactions. किसके साथ reactions होती है, कॉपर के साथ, किसकी, आयोडोबेंजीन। रिडक्शन, रिडक्शन का मीन्स क्या है। अब आपके पास मान लेते हैं क्लोरीन ग्रुप लगा था, मीन्स हैलोजन कोई लगा हुआ था, और आपको लगा कि नहीं नहीं हमें तो बेंजीन चाहिए, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको। किसको लेते हैं, एलाउज, निकेल एंड एल्युमिनियम। रिएक्शंस किससे कराते हैं, बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एरीन और बेंजीन, हाइड्रोजन देखिए अटैच हो गया, और साथ में क्या बाई प्रोडक्ट है, HCl है। इसका मीन्स है हाइड्रोजन को आपने एस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, द नेम ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शंस हो गया। ओवरऑल जो आपकी रिएक्शंस है, तो टू टाइप रिएक्शंस आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट चल रहा था। वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहां होता है, क्लोरीन आर हैलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कहां पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। पैरा का अमाउंट ज्यादा बनेगा, क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। सेकंड
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसके साथ देखिए आपने, किस किस से याद आया, विथ NOH एमीन ग्रुप से, और CuCN था ना, साइनो ग्रुप से था, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से क्लोरोबेंजीन में क्यों नहीं होती, आपने देखा था ना, कितना टेम्परेचर था सोडियम हाइड्रोक्साइड में 623 केल्विन, और प्रेशर कितना था 300 एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है कि ये किस बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से। व्हाट, delocalization of electrons, when the electrons is delocalized, second position is carry one electrons paired and negative charge, and halogen bonded with aromatic nucleus with double bond। कौन सा बॉन्ड का अपीयरेंस हो रहा है आपको, डबल बॉन्ड का। देन ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी Cl को एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड करना उतना आसान नहीं है। इसलिए जब रिएक्शंस करना होती है, किससे रिएक्शंस की थी आपने, याद आया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कितना था, डास्टिक कंडीशंस थी ना, स्पेशल कंडीशंस, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। इससे क्लियर होता है कि जितना आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, उतना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोएरीन और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन में नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जिन्हें हम ड्रास्टिक कंडीशंस भी कहते हैं। जैसे अगर हमें हाइड्रोक्साइड या OH से हैलोजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर अप्लाई करना होगा, तब हैलोजन OH न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूटेड होगा। थैंक यू वेरी मच।